everyone, my name is Neha, and in this class we are going to discuss the gist of the poem The Tale of the Melon City together. Now, this poem is being written by a very famous, not only national but international poet, that is Vikram Seth. I hope you all have heard the name of Vikram Seth. He's a very popular author, writer, poet. Now, before going to the gist of the poem, The Tale of Melon City, first we are going to discuss a bit about this very famous author, poet and writer Vikram Seth. He was a brilliant student from his school days. He has done his schooling from Doon School, and later on he went to Tonbridge School and then Oxford University in England and Stanford University in USA. Now, Oxford University and Stanford University undoubtedly signifies a very bright academic career of this man, Vikram Seth. Now, after completing his graduation and post-graduation from Oxford University and Stanford University, schooling from Tonbridge School and Doon School, we get to know a bit of glance about his good academic career. Now, let us discuss about the subjects in which he excelled in the college days in Oxford University and in Stanford University. The subjects in which he did his graduation were philosophy, politics and economics. These were the three subjects in which he tried to excel his education in the college days. Now, is there any relation of politics and economics from literature? Of course not. So he was having no literary background. Like if we talk about his graduation days or post-graduation days, I mean the college days, he was not much into literature or literary background. But then suddenly, how come he developed interest in writing and writing poets and writing novels and writing books? Because he went to China for 2 years, and in his stay in China for 2 years, he studied poetry and languages, and suddenly his life took a U-turn. He forgot about philosophy, politics and economics, and he developed a new interest in poetry and languages, literature basically. After that, he started writing novels, books, poetries, novellas and a lot more. Now let us discuss about a few very famous novels of Vikram Seth, very famous works rather. Mappings, you must have heard about this work of Vikram Seth, Mappings, and then From Heaven Lake, The Golden Gate, All You Who Sleep Tonight, next Three Chinese Poets, and last but not the least that we are going to discuss here, A Suitable Boy. A Suitable Boy is the work of Vikram Seth that made him an international star overnight. It's a very popular work of Vikram Seth that made him not only popular at the national level, but yes, of course, at the international level. Now, let's move to the gist of the chapter, The Tale of the Melon City. Alright, now, let us discuss about the gist of the poem, The Tale of Melon City. As the name itself is telling, Melon City, एक city है जो melon की है. It is looking a bit humorous, no? Yes, of course, it is a humorous poem that has a lot of comic elements. So you are going to enjoy the gist of the poem a lot, that I assure you. Alright, now let us start about the story outline. It deals with a king who is being considered just and placid. Means who believes in giving justice to everybody. But as you'll move forward to the summary, you will find out that the king is not only just and placid, but also a foolish man. He does not use his wit a bit. So now move forward. Once we don't know how उसके दिमाग में आया, let us get an arch built. Arch, I hope you understand, एक इस तरह से कोई भी state start होता है, हरियाणा, so लिखा होता है welcome to Haryana. I hope you have understood. So now once he got in his mind that I want an arch to be built at the entrance of my town. And as he is the king, so उसके दिमाग में जो भी आया, he can order. And he ordered all the workmen to get an arch built in a few days. सबने बोला yes हुजूर, for sure आपका order है, बिल्कुल काम हो जाएगा.
Now, after a few days, all the workmen came and informed him that as per your orders, Huzur, the arch has been made. अब किंग बोला, मोगैम्बो खुश हुआ कि जैसे मैंने ऑर्डर किया था वैसे एक आर्च बन गई है. नाउ जब कोई चीज बन के तैयार हो जाती है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी ट्राई टू डू द इनॉग्रेशन सेरेमनी सो दैट वी कैन टेल इट टू एवरीबडी, वी कैन प्रोक्लेम इट, वी कैन edify the spectators. So this is what even king decided to do. He wanted to give this message to everybody that see, I've got this innovative idea to adorn my state. That's why I have decided to build an arch. Now he decided to go on a tour to see how the arch has been made. And yes, of course, he called all the spectators so that they can come and they can congratulate him, they can talk and boast about his success and about his ideas, that how innovative the king is. तो उन्होंने सारे spectators, मतलब देखने वालों को, काफ़ी लोग देखने वाले भी आए ताकि वो किंग की तारीफ कर सकें. बट जब हम कहीं इनॉग्रेशन पे जाते हैं, देखने जाते हैं, तो हम तारीफ तो करते हैं बट कुछ ना कुछ गलतियां भी निकालते हैं हर चीज़ की, राइट? तो किंग वॉज रेडी ऑफ कोर्स कि कुछ ना कुछ भी हो सकता है गड़बड़, लेकिन उसने इतना नहीं सोचा था कि तारीफ की जगह बेइज्जती हो जाएगी. अब बेइज्जती कैसे हुई? When the king was riding down the thoroughfare, his crown knocked off due to low height. Obviously the king was wearing that crown. Now because of the low height of the arch, let's say ये एक arch है और ये मैंने एक मुकुट पहना हुआ है, crown. Because of the low height of the arch, मेरा crown नीचे गिर गया. Now when the king's crown knocked off, king got really annoyed. उसे गुस्सा आ गया, उसको लगा this is such a disgrace, ये तो king की बेइज्जती हो गई, जबकि कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं है. एक कोई समझदार किंग होता तो what he could have done, उठाता और दोबारा से पहन लेता. This is not such a big task. But as we have already discussed, थोड़े बहुत foolish elements थे इस king में. So he tried to make this a big issue by saying that this is a big disgrace. I am really disappointed. I want to give punishment to the culprit behind this act. अब culprit कौन है? मैं आपसे पूछना चाहूँगी. आप अपनी चीज आपने गिरा दी. So who is irresponsible here? You of course. आपको पता था हाइट कम है and आप वहाँ से जा रहे हो, so you could have bent a bit और आप अपने crown को पकड़ लो whatsoever. You think of the possible conditions, but king यहाँ कह रहा है कि मैं culprit ढूंढूंगा जो इसके पीछे, इस साजिश के पीछे होगा और उस culprit को सजा दूंगा. Now deep in the heart, I know and I hope you also know who is the culprit. Do let me know by writing in the comment box. I am pretty sure of the fact that you all are having this in your mind that king is the culprit. क्योंकि अगर हम गिर गए, let's say I fell off stairs, so मुझे पता है it was because of my carelessness, right? So how can we blame somebody else कि तुमने कोई planning करी होगी or whatsoever? So now here king is trying to find out the real culprit behind this act. अब क्या होता है? गुस्से में वो ये कहता है ये आर्च किसने बनाई? Workmen. Who are the workmen? In Hindi we call them मजदूर, मिस्त्री or whatsoever. So now he called the chief builder. Chief builder is जो उन workmen's का head होता है. What do we call them? ठेकेदार, I guess, right? So now he called the chief builder and he ordered him to be hanged. सजा छोटी मोटी नहीं थी कि डांट दो, चलो कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर दो टाउन से, कुछ भी छोटा मोटा सजा पनिशमेंट दे दो. सजा बहुत बड़ी थी. क्या? टू बी हैंग्ड. डू यू थिंक this innocent chief builder deserves to be dead for the carelessness of a king? Of course not. I disagree to the decision of the king. What do you think? Do you agree to this or not? Do let me know by writing in the comment box. Now the chief builder has been called and he has been proclaimed to be hanged. भाई सारे लोग डर गए, चीफ बिल्डर भी डर गया. किसी को भी आप बोलोगे सडनली कि आपको मौत की सजा दी जा रही है, कोई भी डर जाएगा. दिस इज अ बट ऑब्वियस रिएक्शन. नाउ once the chief builder
came on the stage and he had a word with the king. He tried to convince him that, sir, Huzur, it was not at all my fault. I am just a chief builder. I did not work hard in constructing this arch. Actually, who were behind this construction? Workmen. Workmen means Majdoor Mistri. So it is actually workmen, I think, whom you should give the punishment, not me. I was only observing things. मेरी क्या गलती है? Now, as we have already discussed, the king considers himself to be just and placid. So here, just means the person who believes in giving justice. As the king considers him to be a justice-priya king, so that's why he decided that yes, of course, I'm not giving punishment. I'm not going to give punishment to a wrong person because I am a king who believes in justice. That's why एक right इंसान को punishment दी जाएगी. So chief builder को छोड़ दिया जाए, इन्हें punishment नहीं दी जाएगी क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है और मैं एक ऐसा king हूँ who believes in justice. Therefore मैं गलत इंसान को सजा नहीं दे सकता. सो ये मेरे ऑर्डर है कि चीफ बिल्डर यहां से जा सकते हैं. अब फांसी की सजा किसे दी जाएगी? वर्कमैन. आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के सोचो तो क्या एक ये सही डिसीजन है? किसी ने कुछ बोला एंड बीइंग अ किंग यू आर बिलीविंग दैट पर्सन. डोंट यू हैव योर ओन विट्स? डोंट यू हैव योर ओन माइंड टू यूज इट? किसी की भी बात में आ जाने वाला अगर ये किंग है तो क्या ये सही किंग है? क्या इसके अंदर एक किंग की क्वालिटीज आपको कहीं दिखाई दे रही हैं? बताना जरूर. मुझे तो नहीं दे रही है. नाउ वर्कमैन, व्हेन ही वाज बीइंग कॉल्ड टू बी हैंग्ड, आपको क्या लगता है व्हाट कुड हैव बीन हिज रिएक्शन? वर्कमैन, सारे वर्कमैन आए एंड दे वर ऑल रियली टेरिफाइड, डरे हुए थे, पेट्रिफाइड, एंड दे प्लीडेड, भीख मांगी, हुजूर हमारी कोई गलती नहीं है. हमने क्या किया है? हमने तो जैसी हमें ब्रिक्स मिली उन ब्रिक्स को लगा दिया. एक्चुअली गलती किसकी है? द पर्सन हु मेड द ब्रिक्स, बिकॉज द ब्रिक्स वर ऑफ रॉन्ग साइज. ब्रिक्स हियर मीन्स ईंटें. आई होप you are understanding. So now the workmen are pleading, they are crying in the front of king and all the spectators, and they are saying that हुजूर हमारी गलती नहीं थी, हमको तो जैसी bricks मिली हमने वैसी लगा दी. It is the fault of Mazen who made the bricks of wrong size. Now as the king considers himself to be just and placid, वो गलत इंसान को सजा नहीं दे सकता. So उसने बोला रुक जाओ, वर्कमैन को सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि वर्कमैन तो इनोसेंट हैं. वर्कमैन ने किस पे ब्लेम डाला? मैजन. तो किंग क्या कह रहा है? अब किसको बुलाया जाए फांसी की सजा के लिए? मैजन को बुलाया जाए. मैजन कौन होते हैं? जो ब्रिक्स को बनाते हैं. इन हिंदी आई डोंट नो उन्हें क्या कहते हैं. ट्राई टू सर्च इट आउट. अब मैजन को बुलाया गया. द मैजन केम ट्रेम्बलिंग विद फियर, डरा हुआ बिल्कुल. ऑब्वियसली अपनी मौत सामने दिख रही होगी, कोई भी डरेगा. डरा हुआ आया, थोड़ी देर रुका, सोचा, फिर बोला सर मेरी गलती नहीं है. मैंने तो जैसे मुझे आर्किटेक्ट ने कहा था जितने साइज की ब्रिक्स बनानी है वैसी ही बनाई. सो यू मस्ट कॉल द आर्किटेक्ट एंड डिस्कस विद हिम कि उनको किसने कहा था इस साइज की बनाने के लिए. मेरे को तो जैसा ऑर्डर आया मैंने वैसा बनाया, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? Now, as we have already discussed, the king considered himself to be just and placid. So the king thought, मैजन को सजा नहीं दी जाएगी. क्यों? क्योंकि मैजन बेकसूर है. मैं एक जस्टिस प्रिय राजा हूं, मैं एक गलत इंसान को सजा नहीं दे सकता. Therefore, मैजन को छोड़ दिया जाए. किसको बुलाया जाए? आर्किटेक्ट को बुलाया जाए. Now the architect has been called. अब फाइनली आर्किटेक्ट को सजा दी जाने वाली है. आपको क्या लगता है आर्किटेक्ट को सजा दी जाएगी? जानने के लिए बने रहिए, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त. अब आर्किटेक्ट आता है, दिमाग वाला है आर्किटेक्ट भी. आर्किटेक्ट ने रिमाइंड करवाया किंग को that it was his majesty himself who had made some changes in the plan. Architect said that sir, it was your majesty.
I hope you remember once I came with a plan, whole planner, that how the arch is going to be built, and you made some changes in the planner. I hope you remember that. मैं समझाती हूँ इसको हिंदी में. किंग आर्किटेक्ट बोला, सर आपको याद होगा एक बार मैं आपके पास प्लानर लेके आया था एंड आपने उसमें कुछ चेंजेस किए थे. सो बिकॉज ऑफ दोज चेंजेस दिस shape of the arch has been changed. So it is not my mistake at all. I did whatever was being instructed by you. So मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? आपने जैसे कहा मैंने तो वैसे ही किया था हुजूर. अब किंग अपने आप को क्या समझता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ. Just and place it, right? Absolutely. So अब वो क्या कह रहे हैं पूरे क्राउड के आगे कि आर्किटेक्ट हैज बीन प्रूव्ड इनोसेंट नाउ अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्ट हु इज टू बी हैंग्ड? किंग. तो अब किंग तो डर गया. नाउ इट इज किंग्स टर्न टू बी हैंग्ड. ऑब्वियसली किंग है तो अपने ऊपर ब्लेम इतनी आसानी से तो नहीं लेगा. किंग घबरा तो गया, बहुत ज्यादा कंफाउंडेड, इन्फ्यूरिएटेड, गुस्से में है, कंफ्यूजन में है, डरा हुआ है. ही इज ट्रेम्बलिंग नाउ. व्हाट टू बी डन? ऑफ कोर्स मैं सारी जनता के आगे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एंड प्लेसेड, आई बिलीव इन जस्टिस, आई बिलीव इन जस्टिस. सो अगर अब मैं अपने आप को सजा नहीं दूंगा तो भी गलत हो जाएगा, क्राउड गलत सोचेगा. बट अपने आप को सजा देने में, सामने खुद से मौत लेने में कोई भी डरता है. डर गया बहुत, समझ नहीं आया क्या करें, कंफ्यूज्ड है, डरा हुआ है, गुस्से में है. एंड ही डिसाइडेड that I am unable to take out a solution for this problem, so I need a suggestion. जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना, फोन ऑफ फ्रेंड, कि जब कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो किसी दोस्त से सजेशन लेंगे. ऐसे ही इन्होंने एक लाइफ लाइन यूज करने का सोचा. Now what is the lifeline? He decided that the wisest man of the town should be called and I will seek suggestions from him or her. जो भी वाइसेस्ट मतलब सबसे इंटेलिजेंट इंसान है आसपास हमारे, उनको बुलाया जाए मेरे रॉयल कोर्ट में. वहां पे मैं उनसे सजेशंस लूंगा, वो जो सजेस्ट करेंगे अब वो किया जाएगा. नाउ देयर वाज अ सर्च वारंट दैट वाज बीइंग मेड आउट टू सर्च फॉर द वाइसेस्ट मैन ऑफ द टाउन एंड द वाइसेस्ट मैन came out to be an old man who could not see and neither could walk because of his old age, and probably old age की वजह से ही उसको वाइस माना गया. कहते हैं ना उम्र के साथ समझदारी आ जाती है, तो ऐसा ही माना गया कि ये सबसे ओल्ड है एंड समझदार है. बिकॉज ऑफ एज ही हैज सीन अ लॉट एंड दैट्स व्हाई ही हैज बिकम अ बिट intelligent or intellectual. So he would be the perfect person to analyze the situation and give the perfect solution. Now when the wisest man was being called in the royal court in the front of king, he was being told the entire situation. अब wisest man ने क्या आंसर दिया होगा? I know you all are really curious to know, and मेरा मन तो करे कि आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, बट अभी परफेक्ट इन पर्सन क्लासरूम नहीं, अदरवाइज बहुत मजा आता. सो बिकॉज ऑफ अ बिट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वीडियो लेक्चर आई वुड हैव टू टेल यू, आपकी क्यूरियोसिटी यहीं पर तोड़नी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि वाइसेस्ट मैन ने क्या डिसीजन लिया. वाइसेस्ट मैन ने डिसीजन लिया कि किंग को मार देना चाहिए या नहीं मारना चाहिए. नहीं मारना चाहिए. ना ही हमें चीफ ऑफ बिल्डर, वर्कमैन, मैजन्स, आर्किटेक्ट, किसी को भी नहीं सजा देनी चाहिए. एक्चुअली हु इज एट फॉल्ट? द आर्च इज एट फॉल्ट. कितना समझदारी का जवाब दिया. कह सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कि ही वॉज एक्चुअली अ वाइज पर्सन. ही सेड दैट nobody should be hanged for this crime. It is actually arch's fault. Arch मतलब जो भी वो बनाया गया था, बिल्ड किया गया था, आर्च हमारा, उसकी गलती है. क्यों उसकी गलती है? Why the arch is the real culprit? Because it has banged the royal crown off. रॉयल क्राउन ऑफ से टकराने की हिम्मत करी उस आर्च ने, तो उस आर्च की गलती है और उसे सजा देनी चाहिए फांसी की. तो उसको फांसी की सजा कैसे दी जाएगी? कि उसे तोड़ दिया जाएगा. राज दरबार में पैसा बहुत,
नई आर्च बन जाएगी, किसी की जान तो नहीं जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी द डिसीजन ऑफ दिस वाइसेस्ट मैन वॉज एब्सोल्यूटली राइट। बट हाँ, बहुत इसमें क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं पोइट्री में। यू ऑल आर फ्री टू गिव योर व्यूज। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, what do you feel about this wisest man's decision? Do let me know by writing in the comment box. Now, as per the wisest man, it is the arch who is to be hanged. अब इस decision से the king is happy, in fact very happy. I am happy कि किसी की जान नहीं जा रही है, सब safe हैं. I think architect भी खुश होगा, masons भी खुश होंगे, वर्कमैन भी खुश होंगे, चीफ ऑफ बिल्डर्स भी खुश होंगे कि सबकी जान बच गई। आप लोग इसके डिसीजन से अग्री करते हैं या नहीं? डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। बट कुछ लोग हैं जो अग्री नहीं करते, एंड दोज हु आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ दिस वाइसेस्ट मैन, दिस ओल्ड मैन। जानते हैं कि वो कौन लोग हैं? कुछ काउंसलर्स हैं किंग के, जो उनके आसपास रहते हैं, किंग को बहुत गलत बातों पे वाह 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 करके काउंसिल करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव सीन इन द मूवीज एंड ऑल कि वो जो कुछ हमेशा साथ रहने वाले काउंसलर्स होते हैं, सो कॉल्ड साइकोफैंट्स। साइकोफैंट्स आर वो चेले जिन्हें हम कहते हैं, जो हमेशा आसपास रहते हैं और गलत चीज़ों पे भी प्रोवोक करते हैं दैट यस यू आर राइट। एंड यही वो काउंसलर्स थे जिन्होंने किंग को प्रोवोक किया था एट द टाइम ऑफ हिज डिसीजन व्हेन ही डिसाइडेड दैट एन आर्च शुड बी बिल्ट। बहुत वाहवाही करी कि ये वाह भाई बहुत अच्छा डिसीजन है, दिस इज समथिंग न्यू एंड ऑल। एंड नाउ ये काउंसलर्स वाइसेस्ट मैन के डिसीजन से डिसअग्री करते हुए ये कहते हैं आर्च को कैसे सजा दे सकते हैं, जबकि आर्च तो पवित्र हो गई है। पवित्र क्यों? बिकॉज आर्च हैज टच्ड द रॉयल हेड। हुजूर, इसको तो बिल्कुल सजा नहीं दे सकते, आर्च की तो पूजा करनी चाहिए हमें, क्योंकि आपके क्राउन को टच करने का सौभाग्य मिला है आर्च को। सो हाउ कैन वी गिव पनिशमेंट टू आर्च? दिस इज नॉट अ जस्ट डिसीजन, वी डोंट अग्री टू इट। अब एज द किंग वी हैव so far we have discussed a lot about this king and we have got to know that he is a foolish king। और एक बात हम कह सकते हैं, सबकी बातों में आ जाता है। सो अब काउंसलर ने बोला तो काउंसलर की बातों में आ गया, बोला हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हो, आर्च तो भाई शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, इट हैज बिकम प्योर बिकॉज इट हैज टच्ड माई हेड। किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की, आप कह सकते हो किसी को ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। नोबडी इज फॉर्चुनेट इनफ टू टच माई क्राउन, सो दिस आर्च has got this opportunity. Yes, of course we cannot give punishment to this arch, therefore we will make it a holy place, it will be considered a holy thing from now onwards। अब ये वाले डिसीजन पे अग्री तो कर लिया किंग ने, बट लोग रेस्टलेस हो रहे हैं। ऑल द स्पेक्टेटर्स दे वांट टू सी द जस्टिस, बिकॉज इतनी देर से राजा बोलता आ रहा है आई एम अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग and I will give justice and I will find out the culprit, give punishment to the person who is at fault। So now the people are getting restless, they want to know who is the real culprit behind this crime। जब लोग बहुत रेस्टलेस होने लगे तो राजा को समझ आने लगा कि लोगों को शांत करने के लिए कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, मतलब किसी ना किसी को सजा तो देनी ही पड़ेगी। बट कोई निकल के ही नहीं आ रहा कल्प्रिट, क्योंकि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है? किंग है, राइट, हम सब जानते हैं ये। अब राजा को जब कुछ समझ नहीं आया, राजा ने बोला नाउ इट इज मी हु इज गोइंग टू टेक द फाइनल डिसीजन एंड द फाइनल डिसीजन इज सेट अ नूज, नूज मतलब वो फांसी का फंदा, एंड कॉल एवरीबडी वन बाय वन, whosoever will fit the noose he or she will be given the punishment। ये कैसा जस्टिस हुआ भाई? मैं तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। कैन यू डाइजेस्ट इट? डू लेट मी नो। कह रहा है कि एक एक करके सबको बुलाओ एंड वील सेट अ नूज, हम एक फंदा सेट करेंगे। हिंदी में समझा दे रही हूँ एक बार, जो भी उस फंदे में जिसकी हाइट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली जो फिट आया उसे फांसी की सजा दी जाएगी। ये तो बहुत गलत बात हुई।
इतनी देर से आप कहते आ रहे हो दैट आई एम अ जस्ट एंड अ प्लेसिड किंग, मैं किसी बेकसूर को सजा नहीं दे सकता, तभी आपने वर्कमैन को सजा नहीं दी, तभी आपने चीफ ऑफ बिल्डर्स को सजा नहीं दी, आर्किटेक्ट को सजा नहीं दी, मैसन को सजा नहीं दी। अब आप किसी को भी उठा के जिसकी हाइट फिट आ जाएगी उसको सजा दे दोगे, तब क्या आप जस्ट एंड प्लेसिड किंग रहोगे? ऑफ कोर्स नॉट। सो ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। लोगों को गुस्सा भी आया, लेकिन किंग का ऑर्डर है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एक एक करके सब लोगों को बुलाया गया, डरे हुए, सहमे हुए, टेरिफाइड, पेट्रिफाइड, एवरीबडी केम एंड दे स्टूड ऑन द स्टेज एंड चेक किया गया क्या उनकी हाइट नूज से फिट हो रही है या नहीं। एक एक करके सब आए, बट लकीली द नूज वाज सेट अ बिट हायर, थोड़ी सी ऊंचा सेट किया गया था, और कोई भी, बिकॉज यू नो वहाँ पे लोगों की हाइट नॉर्मल थी, कोई भी इंसान उस नूज की हाइट तक नहीं पहुँच पाया और किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं मिल पाई। फाइनली लास्ट चांस था किंग का, एंड लेट मी टेल यू ऑल, किंग वॉज द ओनली पर्सन ऑफ द टाउन हु वॉज वेल बिल्ट, टॉल एंड अच्छा हट्टा कट्टा। आपको क्लू तो मिल गया होगा कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। यस ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब ये नोज सिर्फ और सिर्फ किसको फिट हुआ? किंग। बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी हाइट फिट हो गई नोज से। द सेकेंड टाइम नाउ द डेथ पनिशमेंट हैज कम ऑन द किंग। फर्स्ट टाइम ही हैज एस्केप्ड इट by taking suggestions from a wisest man, but आपने the wisest man, but आपने the wisest man की बात नहीं मानी, दोबारा से फंस गया, अपने ही बुने हुए जाल में खुद से फंस गया। अब क्या करें? अब कोई चारा नहीं है। People are restless as we have already discussed. They want to see the justice. अगर अभी किसी को सजा नहीं दी गई, इनफैक्ट राजा को सजा नहीं दी गई, वो वैसे ही मार देंगे उसको। इतना रेस्टलेस हुए पड़े। राजा को लगा अब कोई चांस नहीं है, देयर इज नो वे आउट टू एस्केप फ्रॉम माई डेथ, एंड फाइनली द पुअर किंग हैड टू बी हैंग्ड। बुरा लग रहा है मुझे भी, आई होप आप सबको भी लग रहा होगा, बट इसकी खुद की गलती की वजह से हुआ। नाउ द पनिशमेंट हैज बीन गिवन टू द किंग, पीपल आर सेटिस्फाइड। वो उनको भाई कोई पनिशमेंट देखनी थी, किसी को भी दो, जो भी कल्प्रिट है। एक्चुअली स्टार्टिंग से हम तुम सब जानते थे कि कल्प्रिट तो राजा ही था, तो कहीं ना कहीं जस्टिस तो हुआ, एंड पीपल, द स्पेक्टेटर्स, दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड नाउ बिकॉज दे वर गेटिंग रेस्टलेस एज दे वांटेड टू सी अ पनिशमेंट, दे वांटेड टू सी समबडी टू बी हैंग्ड। हैंग किसको किया गया? जो एग्जैक्टली कल्प्रिट था, किंग। वैसे इतना बड़ा कल्प्रिट नहीं था कि फांसी की सजा दी जाए, किसी से भी केयरलेसनेस से कुछ भी गिर सकता है। हम लोगों से भी, हमारे हाथ में पेन है, बहुत बार गिर जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमें फांसी की सजा दे दी जाएगी, बट ठीक है, किंग अपनी ही मूर्खता की वजह से इस जाल में फंसा। नाउ ऑब्वियसली द किंग हैज बीन हैंग्ड, सो नाउ इट इज द टर्न फॉर चूजिंग द नेक्स्ट किंग। सो नाउ ऑल द मिनिस्टर्स, सबसे पहले तो वो खुश हैं कि जस्टिस हुआ टाउन में, कि लोगों का विश्वास कोर्ट पे, जस्टिस पे बना रहेगा। बट नाउ एक नेक्स्ट, आप कह सकते हो, उनके पास सिचुएशन आ चुकी है, एंड दैट इज कि एक किंग ढूंढना है। अब फिर से एक और आपको ह्यूमर एलिमेंट दिखेगा इसमें, एंड व्हाट्स दैट ह्यूमर एलिमेंट? ऑब्वियसली हाउ डू यू सिलेक्ट अ किंग फॉर योरसेल्फ? by electing, we have a democratic government, so we elect the person whom we want to see as our minister. But here the ministers, they proclaimed that we are going to select our next king, and what is going to be the procedure? That whosoever will pass the city gate first, he or she would choose our next king. ये क्या तरीका हुआ भाई? Again a humor element, again a comic element. क्या है नेक्स्ट किंग कैसे चुना जाएगा? मैं हिंदी में भी समझा देती हूँ। जो फर्स्ट इंसान, पहला इंसान हमारे टाउन के गेट में एंटर करेगा, दैट पर्सन विल सिलेक्ट अवर न्यू किंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है? इट साउंड्स क्वाइट फनी, बट इनका यही तरीका है। ऐसा अगर हो जाए हम लोगों के साथ तो भागते भागती मैं तो किसी टाउन में चली जाऊँ। बट
इतनी ऐसी किस्मत शायद आए भी। आगे बढ़ते हैं। नाउ everybody was expecting and everybody was expecting somebody to come and give a wise decision. सब लोग देख रहे हैं, आंखें बिछा के बैठे हैं कि कौन होगा वो इंसान जो फर्स्ट एंट्री लेगा इस गेट में। एंड यू नेवर नो, वो बोले कि मुझे बनाओ किंग, कोई भी आएगा वो यही बोलेगा ऑफ कोर्स। सो हर कोई मोस्टली यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपने आप को ही बनाएगा जो भी आएगा। सो सब बहुत ही, क्या कहते हैं हिंदी में, वो पल के बिछाए बैठे थे कि कौन आएगा, with their eyes fixed on the city gate. जानना चाहते हो कौन आया? Unfortunately, an idiot entered the gate. एक पागल इंसान जो एक्चुअली अपने मेंटल लेवल बैलेंस को खो चुका था, with low cognitive skills, he entered the gate. अब एक पागल इंसान आया तो आप पागल है, मेंटली एब्सेंट है, तो फिर तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतनी समझदारी की बात का जवाब दे पाएगा। ऑफ कोर्स नॉट। जब वो एंटर किया, द मिनिस्टर्स, द सिटी, द गार्ड्स, they asked him the question that was decided to be asked to the person who is going to take the first entry, that हुजूर आपने फर्स्ट एंट्री ली है, आप हमारे लिए कह सकते हो लकी आदमी हो, आप प्लीज ये बताइए that who is going to be our first king. क्या जवाब दिया होगा इडियट ने? मैं बनूंगा? नहीं, मैं नहीं, मतलब इडियट। What do you think? इडियट ने बोला a melon. A melon? This sounds quite funny, no? But that was a standard answer of this idiot to all the questions. आप उससे पूछो what is your name, he is going to say a melon. What do you want to eat? A melon. Where do you live? A melon. Who do you want to elect as the next king of this town? A melon. Because it was his standard answer to all the questions. And standard answer क्यों था? Because he loved melons. उसको पसंद थे, इसलिए उससे कुछ भी पूछो, he is going to give the standard answer, a melon. तो जब ये पूछा गया who is going to be the next king, he said a melon. Now people would have disagreed to this decision, या वो कह सकते थे because he is an idiot so we will consider the next person जो अपने senses में होगा, उससे हम आंसर सुन लेंगे। बट जैसे ही लोगों ने सुना, इनफैक्ट मिनिस्टर्स ने सुना अब मेलन, वो खुश हुए एंड उन्होंने क्या किया, फटाफट मेलन को थ्रोन पे बिठाया एंड ही क्राउंड इट, दे क्राउंड इट एज द न्यू किंग। मेलन के सिर पे क्राउन रखा और उसको नया राजा बना दिया। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा जब मिनिस्टर्स ये डिसीजन ले सकते हैं कि जो इंसान सबसे पहले आएगा वो राजा चुनेगा, तो वो ये भी डिसीजन ले सकते थे कि बिकॉज ही इज मेंटली एब्सेंट, तो जो नेक्स्ट आएगा ही और शी विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू चूज द नेक्स्ट किंग। बट मिनिस्टर्स ने क्यों नहीं लिया ये डिसीजन? मैं चाहूंगी आप अपने दिमाग के हॉरिजॉन्स को एक्सपैंड करो, सोचो क्यों उन्होंने एक मेलन को सिलेक्ट किया। डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। Now generally at the end of the poem we see that people ask the citizens of the town that why their monarch is a melon. जब भी कोई आसपास का कोई नया इंसान आता था उनके टाउन में, वो जरूर पूछता था कि कैसा राज्य है जहाँ का राजा एक मेलन है। People used to reply with a smile on their face that we have no complaints from this king as long as they are allowed to live in peace and with liberty. This is a hint that I have given you. I have asked a question from you all, जिसका ही आपको साफ साफ हिंट मिल रहा है आंसर में। मैं देखती हूँ कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं। लोग कह रहे हैं हमें कोई परेशानी नहीं है जब तक एक राजा हमारी पीस एंड लिबर्टी में इंटरफेयर ना करें, वी आर हैप्पी विद द किंग। सो हम बहुत खुश हैं इस मेलन राजा से, हम चाहते ही नहीं है अवर नेक्स्ट इलेक्शंस, अवर नेक्स्ट न्यू किंग, वी आर वेरी हैप्पी विद दिस मेलन because he doesn't interfere with our peace, doesn't interfere with our liberty. जबकि पुराना वाला किंग आपको याद है जो न्यूज़ में फिट हुआ उसको सजा दी जाएगी, ये तो बहुत ही अत्याचार था। तो जिन लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा था, जो इतने ज़्यादा एक सिंगल फूलिश मैन के राज्य में एक बहुत ही आप कह सकते हो परेशानी वाली ज़िंदगी जी रहे थे, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। क्यों? किसी फूलिश मैन के कोई डिसीजन नहीं, कोई मिनिस्टर्स की कोई फ्लैटरी नहीं, कोई साइको फैंसी नहीं, जो आपको करना है आप कर सकते हो। इस टाइम पर लास्ट में बोला गया
कि टाउन में लेज़ास फेयर भी स्टार्ट हुआ. लेज़ास फेयर क्या होता है? फ्री ट्रेड. पीपल वर फ्री टू यू नो डू ट्रेड विद द अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज. ये सब साइन है डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट क्यों हुई? क्योंकि लोगों को फ्रीडम मिली. फ्रीडम कैसे मिली? एक डेमोक्रेटिक टाउन बन गया. लोग अपने हिसाब से जीने लगे. दे गॉट देयर फ्रीडम. दे गॉट देयर फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू ट्रेड, डू ट्रेड. सो इन सब चीज़ों से वहाँ पे डेवलपमेंट आई. लोगों के पास पैसा आया, खुशी आई, दे वर हैप्पी. एंड दैट्स वाई वो चाहते ही नहीं है कि कोई और किंग दोबारा आए. दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस मेलन. तो कहीं ना कहीं क्या आपको एक हिंट मिल रहा है कि लोगों ने मेलन को उस समय फटाफट क्यों सिलेक्ट कर लिया विदाउट एनी ऑब्जेक्शन? प्रोबेबली द पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे वर लाइक fed up of this single man's rule in their country, in their town, and they wanted to live with freedom. They wanted to live with their own choice, but वो हो नहीं पा रहा था. एक मोनार्की चलती आ रही थी, बट वो मोनार्की को कैरी फॉरवर्ड भी करना था. तो जो मेलन का डिसीजन लगा सबको सही लगा. दैट्स व्हाई नोबडी ऑब्जेक्टेड इन बिटवीन. यस, ऑफ कोर्स यही कुछ रीजंस हो सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल. इट वॉज क्वाइट फनी, बट येस ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा समझने वाला एलिमेंट था इसमें. बहुत ह्यूमरस वे में पोर्ट ने हमको कुछ समझाने की कोशिश करी कि कोई भी राजा चुनने से पहले वी ऑल सिलेक्ट आर मिनिस्टर्स या आर प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स. सो हम सबको पहला पॉइंट अपने अकॉर्डिंग जो हमारे लिए अच्छा हो ऐसा कोई राजा चुनना चाहिए जो हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, हम लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प कर सके. कोई ऐसा फूलिश राजा नहीं चुनना चाहिए कि हम लोग बाद में सफरर्स बने, जैसे ये बेचारे थे कि जिसको नूज फिट हुआ वो मरेगा. ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी. सो राजा चुनने से पहले, अपने मिनिस्टर्स चुनने से पहले, फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू लर्न, वील हैव टू बी वेरी वाइज. Second thing that we'll have to learn from this chapter is the sycophancy of the people, especially the sycophant kings, sycophant ministers होते हैं जो कुछ, या ministers के आगे पीछे रहने वाले sycophants होते हैं. इनसे हमको एक लेसन मिला कि ऐसे आपकी लाइफ में भी बहुत sycophants होंगे. Try to remain away from them. देखा ना यहाँ क्या हुआ? वही साइकोफैंट्स जो पहले बोल रहे थे वाह राजा बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बढ़िया डिसीजन है आर्च बनाने का, बाद में उन्होंने ही सबसे पहले बोला कि जस्टिस तो देना पड़ेगा, राजा मर गया तो बहुत ही बढ़िया हुआ, हम सेटिस्फाइड हैं क्योंकि एक अच्छा जस्टिस मिला, नाउ हम एक नया किंग चुनेंगे. सो ट्राई टू रिमेन अवे फ्रॉम द पीपल हु डू योर साइकोफैंसी, जो आपकी चापलूसी करते हैं, आगे पीछे रहते हैं, बहुत तारीफ करते हैं. बी कॉशियस. रियल दोस्त होने चाहिए, चाहे कम हो या आगे पीछे जो भी आप, द पीपल विद whom you remain surrounded with, कम हो लेकिन अच्छे हो. Thank you so much. I hope you have understood the gist of the poem. It was really interesting with a bit of humor elements. Thank you so much once again and keep studying.